سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کی بات کرتے ہیں، جس میں 4 سابق وزرائے اعظم بیرسٹر سلطان محمود، سردار عتیق احمد خان، راجہ فاروق حیدر اور سردار یعقوب خان اپنی اپنی نشست جیتنے میں کامیاب رہے، جبکہ کئی ایک وزراء کو ہار کا مزہ چکھنا پڑا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں 4 سابق وزراء اعظم نے بھی میدان مار لیا۔ بیرسٹر سلطان محمود، سردار عتیق احمد خان، راجہ فاروق حیدر اور سردار یعقوب خان اپنے مخالف کو زیر کرنے میں کامیاب رہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سنسنی خیز مقابلے کے بعد LA 32 سے فتح یاب قرار پائے۔ انہوں نے 15,598 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ اشفاق ظفر 15,204 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تاہم LA 33 سے راجہ فاروق حیدر خان کو PTI کے دیوان علی چغتائی نے بآسانی شکست دے دی۔ آزاد کشمیر کے وزراء چودھری سعید مشتاق منہاس، رخسار احمد، چودھری طارق فاروق، راجہ نصیر احمد خان، چودھری عزیز اور افتخار گیلانی اپنی نشست سے نہ بچا سکے۔ تاہم اسپیکر شاہ غلام قادر، ڈپٹی اسپیکر عامر الطاف اور ہائر ایجوکیشن کے وزیر وقار نور نے فتح سمیٹ لی۔ گزشتہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین ایک بار پھر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود کے بھائی چودھری ارشد نے بھی کامیابی سمیٹ لی۔ باغ سے PTI کے سردار تنویر الیاس نے بھی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ راولاکوٹ کے حلقہ LA 21 پونچھ 4 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق JKPP کے امیدوار حسن ابراہیم 8,205 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ اور LA 32 میں دھاندلی کے الزام پر پیپلز پارٹی کے امیدوار صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر نے RO آفس ہٹیاں بالا کے سامنے دھرنا دے دیا۔ صاحبزادہ اشفاق ظفر نے حلقہ بھر کے کارکنوں کو ہٹیاں بالا پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، مبارک حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبارک، بتائیے گا اس بارے میں۔ سے موجود ہوں ہٹیاں بالا، جہاں پر LA 32 حلقہ نمبر 6 پیپلز پارٹی کے امیدوار صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے یہاں پر جو وہ دھرنا دے دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق ظفر صاحب۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، چونکہ ہمارے پاس جو رزلٹ جمع ہوا ہے اس سے 672 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، جبکہ DRO نے تمام تھیلے پہنچنے کے بعد RO کے پاس 8 گھنٹے ڈیلے رزلٹ ملنے کے باوجود اور پھر مجھے 347 ووٹوں سے ہرایا گیا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ گنتی دوبارہ کریں، اگر ہم ہارے ہوئے ہیں تو اپنی شکست تسلیم کر لیں گے، لیکن ہم کسی مائی کے لال کو رزلٹ میں ٹیمپرنگ نہیں کرنے دیں گے۔ میں صبح سے RO کے پاس ہم آئے، اس کو ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی، اس نے کہا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، پورے 6 گھنٹے لگائے، وہاں سے اس نے کہا جی یہ DRO کا اختیار ہے۔ بھلا ری کاؤنٹنگ کرنے میں آپ کو کون سا امر مانے ہے؟ ہار میں مانوں گا اگر میں ہار گیا ہوں، لیکن اگر اس طرح ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور دھوکہ دہی فراڈ سے ہمارے رزلٹ کو چینج کیا جاتا تو ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے۔ آج ہم یہاں پرامن احتجاج میں بیٹھے ہیں، کل جیلم ویلی سڑک بند کریں گے اور کل ہم کوئی بھی اشتعال انگیز کارروائی کرنے میں حق بے جانب ہوں گے اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم کل پورا ضلع جیلم ویلی جام کریں گے اور ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور آزاد کشمیر الیکشن ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کی نماز جنازہ مظفر آباد میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کے جسد خاکی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اپنی نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے صرف نواز شریف اور اپوزیشن کو ہی رگڑا نہیں لگایا، اپنی وزارت کے تحت محکموں کی خرابیاں دور کرنے کا پروگرام بھی دیا۔ پناہ لینے والے افغان فوجیوں پر بھی بات کی۔ اسی بارے میں سعود بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ پناہ لینے والے افغان فوجی مہمان ہیں، مہمان نوازی سے واپس بھیجیں گے، شیخ رشید احمد نے بتا دیا۔ نیوز کانفرنس کے دوران افغان سرحد پر باڑ لگانے کی تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2600 کلومیٹر پر فینسنگ ہو گئی، بس تھوڑے سے پہاڑ باقی ہیں۔ 2600 کلومیٹر کی ہم نے باڑ مکمل کر دی ہے انٹیریئر منسٹری کے انڈر، اور جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اسی 14 اگست تک وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہماری ساری فینسنگ ایران ابھی 50% ہو گیا ہے، 46-48% ہے۔ افغانستان ہماری عظیم فوج نے اس کو 2600 کلومیٹر کی فینسنگ کر دی ہے۔ جو تھوڑے سے پہاڑ شاڑ رہ گئے ہیں یا چٹانیں یا سنگلاخ پہاڑیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم کر رہے ہیں۔
उन्होंने कहा कि FIA और नादरा दोनों को ठीक कर देंगे। गैर मुल्की ताकतें नादरा के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मोबाइल फोन पर साइबर हमला भारत और इजराइल की हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। पाकिस्तान में के खिलाफ इंडिया और इसराइल ने हाइब्रिड वॉर शुरू की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारा डेटा चोरी करने की पूरी कोशिश है और नादरा को बदनाम करने के लिए एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया यूटिलाइज हो रहा है ताकि इस मुल्क के डेटे को ही मशकूक बना दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि नादरा में तस्दीक का नया निज़ाम ला रहे हैं। मशकूक कार्ड वालों को किसी कार्रवाई से पहले मैसेज भेजकर जवाब मांगा जाएगा। बगैर वीजा मुकीम गैर मुल्कियों को 14 अगस्त तक मोहलत देते हुए कहा, या तो मुल्क छोड़ दें या दरखास्त देकर वीजा हासिल करें। शेख रशीद ने 14 अगस्त को सियाचिन के दौरे से वापसी के बाद मंशियात के खिलाफ जिहाद शुरू करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन आशिर भट्टी के हमरा साउद बट 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम और उसके वालिद को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। काश ऐसा निज़ाम बन जाए कि करप्ट लोगों को जल्द अज जल्द फांसी की सज़ा मिले। ये नूर मुकद्दम का केस में PNIL पे और ब्लैक लिस्ट डाल दिया उस मुलजिम को हमने, उसके बाप को भी पकड़ लिया और इसी हफ्ते उसका ECL में नाम डालने के लिए भी कैबिनेट में समरी चली जाएगी। उसके बाप को भी डाल दिया है, मुलाजमों को भी डाल दिया है। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बदली जाएगी। काश इस मुल्क में ऐसा निज़ाम हो कि करप्ट लोगों को और ख़वातीन के साथ ख़वातीन या किसी आम आदमी के साथ कत्ल करने वालों को जल्द अज जल्द फांसी दी जाए। और अहम खबर के K2 बेस कैंप 4 के करीब से 2 लाशें मिली हैं। ज़राए के मुताबिक लाशों की शनाख्त अभी नहीं हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि हो सकता है ये लाशें मोहम्मद अली सतपारा और जॉन स्नोरी की हों, जो कि यहीं पर लापता हुए थे। K2 बेस कैंप 4 के करीब से ये 2 लाशें मिली हैं। अभी तक इन लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि हो सकता है कि ये लाशें मोहम्मद अली सतपारा और जॉन स्नोरी की हों। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अली सतपारा और जॉन स्नोरी इसी मकाम पर लापता हुए थे। मज़ीद जान लेते हैं, रोज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ीना, बताइएगा शनाख्त के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शनाख्त के लिए सबसे पहले तो उनके बेटे साजिद सतपारा को बुलाया गया है और अभी ज़राए से बिल्कुल अभी ये मालूम हुआ है कि साजिद सतपारा भी रवाना हो चुके हैं ताकि जो लाश बरामद की गई है वहाँ से जो लाश मिली है K2 बेस कैंप 4 के मकाम से बोटल नेक के करीब से जो उनके बेटे को बुलाया गया है ताकि शनाख्त जो है वो बासानी की जा सके। अभी तक लाश की शनाख्त नहीं हुई है और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि आया ये लाश मोहम्मद अली सतपारा की ही है या फिर किसी और कोशिश-ए-पैमा की है। जी ठीक है रोज़ीना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाड़काना में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह की तकरीब मनाई गई। सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह का केक पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में काटा गया। नैयर हुसैन बुखारी ने सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत धौंस और धांधली ना करती तो ज़्यादा नशिस्तें हासिल करते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह का केक इस्लामाबाद के पीपल्स सेक्रेटेरिएट में काटा गया। इस तकरीब से खिताब में नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर धौंस धांधली ना करती तो ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीबात मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं और इस्लामाबाद में ये पीपल्स सेक्रेटेरिएट में केक काटा गया। नैयर हुसैन बुखारी समेत दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या कहना था इस मौके पर नैयर हुसैन बुखारी का? जी बिल्कुल, आज तकरीब मुनक्कद हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 66वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में केक काटा गया और सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने साबिक सदर की सालगिरह का केक काटा और इस मौके पर पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर जीतने की मुबारकबाद की थी और इसके साथ साथ आज जो तकरीब मुनक्किद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कराची में सरकारी अफसरों की मुबैना मिली भगत से कोरोना वैक्सीन फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने डिफेंस में छापा मारकर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में हेल्थ सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी का डायरेक्टर और मुलाजिम शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं दानियल सैयद से, जो कि इस वक्त परेडी थाने में मौजूद हैं। दानियल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के वाक़यात हैं, लेकिन जिनका काम है वैक्सीन लगाना शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, उन इदारों की जानिब से इस वैक्सीन कोरोना वैक्सीन के 15,000 रुपये लिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। 2 मुल्ज़मान हैं जिन्हें पीडी पुलिस ने डिफेंस में छापा मार के गिरफ्तार किया है। हम लोग होम केयर नर्सिंग देते थे और मेडिकल सर्विसेज देते थे और कैंप लगाते थे, तो हमारे पास काफ़ी डेटा लोगों का कलेक्ट हुआ था, तो उनसे हम लोग फॉलो अप लेते रहते थे। तो वहाँ पे जो लोग थे कैंप के अंदर जो आते थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम लोग को घर पे आके वैक्सीन वगैरह वैक्सीनेशन करवाएं। तो वैक्सीनेशन जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको बोलते थे कि हमारे इसमें कोई वैक्सीन के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, मगर होम विज़िट के हम लोग सर्विस चार्जेस लेते थे। कितने चार्जेस लेते थे? होम विज़िट के जो फाइज़र वगैरह के इसमें 15,000 रुपये सर्विस चार्जेस होते थे, और हमारे साथ एक गवर्नमेंट का ऑफिसर होता था, नाम क्या है? ज़िशान नाम था उनका, वो हमारे साथ होते थे और आके जहाँ पे वैक्सीन लगाते थे वहाँ पे होके वहाँ से फिर जो पेमेंट होती थी वो कलेक्ट करके चले जाते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम तर जो मुल्ज़मान इस घनौने अमल में मुलव्वस हैं उनकी निशानदेही हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। 60 से ज़ायद अफराद को ये अब तक 15,000 रुपये फ़ी वैक्सीन के लिहाज से लगा चुके हैं। मजीद भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आने के बाद सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात-ए-कार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर दिए हैं, लेकिन शाम 6 बजे भी रीगल मार्केट में ज़्यादातर दुकानें खुली हैं। सदर रीगल मार्केट में हमारे नुमाइंदे सलाल बड़ाइच मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलाल, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस और चौथी लहर को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकज़ के जो औकात-कार महदूद कर दिए गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुलेंगे। इस वक्त पे हम सदर रीगल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने जो देखा 6 बजे के बाद भी जो है ज़्यादातर दुकानें खुली हुई थी। यहाँ पे आने के बाद हमने मजीद ये भी देखा कि पुलिस की जानिब से जो है इनको रिक्वेस्ट की गई कि दुकानें अपनी बंद करना शुरू कर दें, लेकिन दुकानदारों की जानिब से जो है सुस्ती का मुजाहरा किया गया था। इस वक्त हम रीगल मार्केट में खड़े हुए हैं। अगर आप हमारे इतराफ़ में देख सकें कि काफ़ी दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। 6:15 बजे के बाद भी जो है दुकानदारों की जानिब से जो है आधे शटर डाउन किए गए, आधे शटर खोल के उनकी जानिब से जो है कारोबार जारी रखा गया था। दुकानदारों से जो हमारी यहाँ पे बात हुई, उनका यही कहना था कि महदूद औकात कार में जो है कारोबार करना मुश्किल है। कोरोना की वबा से जो है पहले ही माशी तौर पर जो है परेशान, हम काफ़ी परेशान रहे हैं। शहरियों से भी हमारी थोड़ी बहुत जो बात हुई, शहरियों का यही कहना था कि ऑफिस के औकात कार हैं जो वही 5 बजे बंद होते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी चीज़ की ख़रीदारी करने के लिए मार्केट का रुख करना पड़ रहा है, तो लेकिन जो है मार्केटें बंद होना शुरू हो रही हैं या इन औकात कार की वजह से वो काफ़ी तंग दिखाई दिए गए हैं। ताजिर तंजीमों की जानिब से भी जो है सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया हुआ है 72 घंटे का, जो कि बुध 2 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद अगर इस फैसले पर नजरसानी नहीं की गई तो ताजिर तंजीमों का यही कहना था। ठीक है सलाल बड़ाइच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अहम खबर आपको दें कि मोहम्मद अली सतपारा की लाश मिल गई है। K2 से मिलने वाली लाश मोहम्मद अली सतपारा की है, शनाख्त कर ली गई है। मोहम्मद अली सतपारा जॉन स्नूरी जो कि लापता हो गए थे, K2 सर्च करने के दौरान मोहम्मद अली सतपारा की लाश मिल गई है, जिसकी शनाख्त भी कर ली गई है। 5 और 6 फरवरी के दरमियानी शब को मोहम्मद अली सतपारा जॉन स्नोरी के हमरा यहाँ पर लापता हुए थे और तकरीबन 156 दिन के बाद ये 2 लाशें यहाँ से मिली हैं, जिसके बाद ये शनाख्त का अमल जारी था और ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर ये लाशें जॉन स्नोरी और मोहम्मद अली सतपारा की हो सकती हैं। मोहम्मद अली सतपारा की लाश की शनाख्त कर ली गई है और इस बारे में कंफर्म भी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, रोज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ीना, बताएगा कैसे मुमकिन हो पाया शनाख्त का अमल? जी बिल्कुल, देखिए कि मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा को भी बुलाया गया इस अमल के लिए कि आएँ और वो शनाख्त करें और तकरीबन 6 माह मुकम्मल होने को थे। 5 और 6 फरवरी की दरमियानी शब जब मोहम्मद अली सतपारा K2 की चोटी सर करने के बिल्कुल करीब थे और वो लापता हो गए थे, तो उसके बाद अब जाकर उनकी
लाश वहां से मिली है केटू से आज, और आज उनके बेटे के जरिए ये मुमकिन हो सका है कि लाश की शनाख्त कर ली गई है और ये कंफर्म किया गया है जराए से कि ये मोहम्मद अली सतपारा की ही लाश है। जी ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।